सो टू एवरी आर्टिस्ट आउट देयर, एक बहुत अच्छी फिलोसॉफिकल आर्टिस्ट्री वाली वीडियो है। ये मेरे को एक्चुअली अर्पित बाला ने भेजी है, एंड मैं चाहता हूँ कि ये एक थिंग बने, कि ऐसा नहीं कि अर्पित बाला मुझे भेजते रहे। ये बहुत अच्छी वीडियो है, बहुत अच्छी वीडियो है, और तुम्हें बहुत हेल्प करेगी जो भी आर्टिस्ट देख रहा है ये वीडियो। दिस इज़ ओनली फॉर यू। तो जिसको भी क्लिक ऑफ करना है अभी क्लिक ऑफ करके जा सकता है, ये जब भी मैं वीडियो डाल रहा हूँ। सो टाइटल है वाई यू डोंट वॉन्ट टू गो वायरल। ठीक है, लेट्स चेक दिस वीडियो आउट। How to be popular on the internet based on 15 years of making things that are only sometimes popular on the internet. Yeah. Why I don't know if you can don't see want how to much go it's raining on viral? camera, but Yeah. it's raining a lot. In 1988, Jimmy Cauty and Bill Drummond wrote The Manual, or How to Have a Number One the Easy Way. They'd had a novelty pop song hit the top of the charts earlier that year, and The Manual, I've had to plastic wrap my copy, it's a bit rainy, was a Damn bro, उसने पूरी बुक प्लास्टिक रैप कर दी। ये हो रहा है, बारिश हो रहा है इसलिए क्रेजी। tongue-in-cheek guide to success in the music industry. It was how to achieve a number one single with no money and no musical talent. Now, almost all of it is out of date now, but there's one section right at the start that is as relevant today as the day it was written, and it's trying to talk the reader out of what they think they want. And it says, the majority of number ones are achieved early on in the artist's public career before they've been able to establish reputations and build a solid fan base. Yeah. Most artists are never able to recover from having one, and it becomes the millstone around their necks to which all subsequent releases are compared. Either the artist will be destroyed in their attempt to prove to the world that there are other facets to their creativity, or they succumb willingly and spend the rest of their lives as a travelling freak show. So basically, इसने ये बताया है कि बिफोर गेटिंग एस्टैब्लिश्ड प्रॉपरली, या अपना एक पूरा फैन बेस बना नहीं रखा हो, उससे पहले अगर कोई गाना तुम्हारा ब्लो अप हो जाता है, उससे तुम्हें क्या क्या दिक्कतें आ सकती है। इट इज़ अबाउट दिस। तो सम पीपल जस्ट ट्राई टू रीमेक दैट सक्सेस, या उसके पीछे वापस जाने की बहुत कोशिश करते हैं। सम पीपल एंड अप बीइंग डिप्रेस्ड, और जब वो हाई चला जाता है उस गाने का, तब दे आर लाइक ओ शिट, क्या करूं मैं। कोई आर्टिस्ट अगर तुम लोग के दिमाग में आ रहा है ये वाली स्टोरी सुन के, तो तुम चैट में बता सकते हो ये, या बाद में कमेंट भी कर सकते हो, बट दिस वीडियो इज अबाउट दैट। A number one song does not make a career. In fact, it can Facts. kill a career. If Yeah. all you're known for is doing one thing, all the world will True. want to see is that one thing. A single popular video does not make you a YouTube star. It makes you the person who stands up and repeats that catchphrase over and over again. किसी ने किंग लिखा है, आई डोंट थिंक सो कि किंग आता है उस इसमें, क्योंकि मान मेरी जान के बाद भी, या उससे पहले भी, तू आके देख ले भी बनाया था किंग ने, और अच्छा ही मतलब हिट मेकर तो है वो। आई डोंट नो क्यों बीफ में पड़ा, बट Until everyone's tired of it. There are people out there who think just one big hit, that's all they need, that's the path to stardom and being set for life. They were wrong 30 years ago and they're wrong now. If you're a one-hit wonder, then it's not you that's popular, it's that one hit. What Yeah. you need is a steady build, a back catalogue, enough time to learn the skills that you need to survive under the spotlight, to have long-term, sustainable success. If you've been tasked by your boss to make something popular, or if you've had that one hit and now you need the second, that is a terrible environment to be creative in. If you sit round with a committee and you ask, what's funny, what's good, what's popular, what can we make, what will... कॉन्स्टेंटली बेसिकली ट्रेंड के पीछे भागना। अगर ड्रिल अभी बहुत वायरल हो रहा है, मेरा एक गाना ड्रिल से फट गया, क्या उसके बाद तुम्हारे लिरिकल एबिलिटी के लिए, तुम्हारे थ्रो के लिए, तुम्हारे वर्सेटैलिटी नहीं, तुम्हारे फ्लोज के लिए नहीं तुम्हें फॉलो किया जा रहा, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट वन सॉन्ग तुम्हें फॉलो किया जा रहा है। जब तुम अगला गाना फिर ड्रिल डालोगे और उतना हिट नहीं होगा, या लेट से जैसे जर्सी क्लब अब नहीं कोई ज़्यादा यूज़ कर रहा, एक वेव आया था, वैसे समझ लो कोई जॉनरा का वेव चला गया, उसके बाद तुम कैसे सर्वाइव करते हो। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। तो सेंट्रल सी का जब गाना फटा,
उसके बाद भी उसका चलने का यही रीज़न है क्योंकि उसकी फाउंडेशन ऑलरेडी सेट थी, उसने अपनी ऑडियंस बनाई थी, ही वॉज ग्रोइंग ग्रेजुअली, धीरे 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 धीरे, एंड देन जब वो वायरल हुआ उसके बाद उसके प्रोजेक्ट्स भी चलने लग गए, सेम जॉनरा में, सेम टाइप ऑफ फ्लो में अपनी बात रख के भी पीपल कैन रिलेट टू हिम। समझ रहे हो? बट अगर तुम सिर्फ रिलाय कर रहे हो एक ही दैट वन हिट वंडर पे, वो तुम्हें बहुत गंदे डाउनवर्ड स्पाइरल की तरफ ले जाएगा। जो मैंने देखा है बहुत आर्टिस्ट यार, जब बहुत टाइम तक उनका करियर नहीं होता है, वो यही सोचते हैं कि यार मुझे बस एक गाना मेरा फट गया ना, एक गाना फट गया ना भाई, उसी दम पे मैं बहुत शोज खींचूंगा, करता रहूंगा करता रहूंगा। ऐसा नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। अ लॉट ऑफ गुड सॉन्ग्स, ठीक है, सम एवरेज सॉन्ग्स, देन इफ यू हैव दैट वन बिग सॉन्ग, फॉर एग्जाम्पल हनुमान काइंड। हनुमान काइंड के म्यूजिक वीडियोस हमेशा से ही अच्छे थे, उसको बस पॉप होने की देरी थी। जैसे ही बिग डॉग्स फटा, क्या उसके बाद रन इट अप भी नहीं फटा? रन इट अप भी फटा, उसका म्यूजिक वीडियो भी क्रेजी था, वो गाना भी क्रेजी था। समझ रहे हो? People be interested in, then you are already on the wrong track. But you know that idea you had when you were in the shower or in the pub with friends or just letting your mind wander on a rainy beach today? That idea might be good. Your brain is an index, so you can say, think of something popular. Your brain thrives on connections. And it is way more difficult to make those connections when your job depends on it. True. That's so true. Hey, ह्यूमन भाई एक प्लेट बिरयानी लगाओ। यस सर। भाई बहुत पहले, शायद बहुत पहले मैं किसी से ये डिस्कशन कर रहा था और मैंने भी यही बोला था कि रिलेटेबल गाने बनाने की कोशिश कर रहा हूं। ये सबसे फुद्दू बात है। लोगों को रिलेट कराने के लिए मैं लोग क्या सोच रहे हैं ये वाली चीजें लिखता हूं। सबसे फेक गाना बनेगा वो, सबसे फेक गाना। तुम्हारे डीप कोर अंदर तुम्हें जो लगता है वही तुम लिखो, उसी से सबसे ज्यादा लोग रिलेट करेंगे। जब मैंने अपनी दिल की बात रखी तब लोगों को कनेक्ट हुआ, फील हुआ। इसलिए नहीं कि प्यूडीफाई 10 साल पहले जो बोला है, KSI 10 साल पहले जो बोला है वो मैं बोलूंगा तो रिलेट करेंगे लोग। ऐसा सोच के अगर मैं चलता तो कभी ऐसा रेस्पॉन्स आता ही नहीं। स्टॉप स्पैमिंग मृणाल शंकर ब्रो। कौन सा वन हिट वंडर रहा है उसका? वूपटी वाला बंदा वन हिट वंडर था या? तो समझ रहे हो, रिलेटेबल गाना बनाने का है अब, ये वाइब में हूं मैं। ये तो सबसे गंदी चीज है ये। वी जोकिंग, हाँ यार पता है। For me, it took more than a decade of throwing stuff at the internet, of steadily building up a small following and learning my trade, before I found the things you might not know format, an idea that really worked, an idea that got me a large audience and a chance to actually turn this into something that could support me. By sheer luck, that happened. भाई बोलते हैं ना, सबसे बेस्ट आइडियाज तुम्हें तब आते हैं जब तुम सबसे सिलियस चीज कर रहे हो। मे बी वॉशरूम में हो या ऐसे ही बैठे हो, दिमाग जब खाली होता है सबसे बेस्ट आइडिया तब आता है। The point where I'd been working somewhere long enough to build up some savings, so I wouldn't be completely bankrupt if this new shiny YouTube idea didn't work out long term. There's a reason that a lot of people who make stuff for online platforms are either kids supported by their parents or students with a lot of time on their hands or folks who have the means to support themselves. And even if you are one of the lucky ones, if your project starts bringing in some money, if you're lucky enough to have the budget to be able to book a last-minute sleeper train ticket and travel to a remote, rain-swept Scottish island because it makes a better background for your video, it could still end at any time. You could get ill, or your audience could get bored. Actually, your audience, they will get bored at some point. There are some folks out there, mostly still teenagers, with millions of people already following them and money rolling in, and they think this is going to last forever. But every band's second album is difficult, and every TV show starts to lose ratings over time as newer things come along. And the internet works. That's so true, man. मैं अपने स्ट्रीमिंग के बारे में भी अगर बताऊं, जब मेरी मोस्ट वॉचिंग आ रही थी,
आई थिंक कृष्णा एमीवे के बीफ के टाइम 25,000 पीपल वर वॉचिंग मी. बट क्योंकि मुझे अच्छे लोग मिले लाइफ में और मुझे पहले से ही समझा दिया था ये सब कि ये सब चीज़ें सर पे चढ़ने मत देना, ये उस बीफ की हाइप में तुम्हें देखने आ रहे हैं, कल फिर से ये 200-300 की ऑडियंस हो जाएगी. एंड दैट भाई वो एकदम ग्लू लगा के चिपका दिया है मैंने मेरे दिमाग पे कि भाई जब 700-800 लोग देख रहे थे, जब दो लोग झगड़ रहे हैं, दो क्रिएटर्स, वो थोड़े टाइम पे खुद ही कम होके 230-240 हो जाएंगी, क्योंकि तुम्हारे पास बहुत ऑप्शंस है भाई, बहुत ज़्यादा ऑप्शंस है देखने के लिए. कुछ लोग उस ऑप्शंस में से तुम्हें चूज करेंगे. यही है, यही बात है. करो अपना जो करना है. तुम्हें कोई रीमिक्स चैलेंज करके बहुत सारी हाइप मिलेगी क्योंकि तुमने कोई बड़े आर्टिस्ट के गाने को रीमिक्स किया है और तुम्हें बहुत ज़्यादा व्यूज चला गया. इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसी आर्टिस्ट के बार बार रील बनाते रहो, रीमिक्स करते रहो और वो चल जाएंगे या वो ट्रांसलेट होगा तुम्हारा स्पॉटिफाई पे. समझ रहे हो? The same way. The new stuff doesn't necessarily have to be better, it just has to be exciting. People like to have both familiarity and novelty, but there's got to be both. Too much familiarity is boring, too much novelty is scary. If you don't strike a balance, if you can't change with the times, someone else will be ready and willing to take your audience. See, if you don't change with time, कोई और तुम्हारी ऑडियंस ले जाएगा. इक्का भाई, रफ्तार भाई, बादशाह भाई, इनफैक्ट ये सब बुद्धू नहीं है कि इन्होंने नए आर्टिस्टों को देखा, वो जो कर रहे देखा. डीनो ने खुद बोला भाई सूजल मेरे साथ सेशन कर ले यार, एंड ही ड्रॉप्ड अ बैंगर एल्बम. व्हाट एन एल्बम भाई, शाउट आउट टू डीनो. ये नया साउंड सब लोग क्यों कर, अरे यार फिर चला गया क्या नेट, बट व्हाटएवर, वीडियो में है ये. जो भी लोग नया साउंड कर रहे हैं ये क्यों कर रहे हैं भाई? चार दीवारी के साथ गाना कर रहे हैं रफ्तार भाई, एंड इतना कैची पार्ट कैसे बना रहे हैं? कैसे? इक्का भाई कैसे एमसी स्टैन के साथ जब कोलैब किया था तो वो साउंड कर लिया था. जब ईपी आई तब भाई नया ही कुछ तो, दिल्ली से हूं, वो वाला जो गाना है, क्या गाना है भाई. ये सब कैसे हो रहा है? सीधे मौत DL91 के साथ कैसे काम कर रहा है? मतलब समझ रहे हो ना, बहुत सारे एग्जाम्पल्स है. एमीवे ने भी भाई ऑटो ट्यून पहले करता था, एमीवे नहीं करता था. अब कितना सारा चीजें कर लिया भाई एमीवे ने भी. यही बात होती है भाई. तभी फिर जब रियलिटी चेक मिलती है तो आर्टिस्टों को बुरा लगता है. दैट कुड बी क्रिएटर्स, दैट कुड बी रैपर्स. For almost every creator making stuff for the internet, the work they do is a passion project. So if you're starting out, you should know it isn't going to support you for the first few years, perhaps the first few decades, perhaps ever. And if you're one of the lucky ones, if you've made it, it very likely won't support you for life. I mean, if this is a passion project, you probably won't care about that. As long as you know that, as long as you plan for it. Exactly. मैं एक फीमेल रैपर से भी बात कर रहा था, गमक, शाउट आउट गमक. वो बता रही थी कि कैसे म्यूजिक उसके लिए पैशन है. आई डोंट केयर अबाउट द सक्सेस. मैंने अपनी मम्मी पापा को म्यूजिक करते हुए देखा है, आर्ट फॉर्म करते हुए देखा है. दे आर सो हैप्पी डूइंग देयर जॉब. मुझे वैसा ही करना है. अब जब उसने डिसाइड कर लिया है कि भाई मेरे को सिर्फ पैशन के लिए करना है, वो नहीं रेस में जाएगा. वो उसकी चॉइस है भाई. समझ रहे हो? That's fine. But you'll have seen all the creators in every भाई हेयरलाइन जा रही है क्या? नहीं ब्रो, मेरे बाल है, वो मैंने ऐसे ही मेरे पास ऐसे पड़ा हुआ देखा मैंने अर्बन मंकी का, तो मैंने पहन लिया था बस, और कुछ नहीं. बट हाँ, genre on YouTube talking about burnout. Your dream job can still be a nightmare if you don't have a backup plan. In 1994, योर ड्रीम जॉब कैन बी अ नाइटमेयर इफ यू डोंट हैव अ बैकअप जॉब. टेम नेट गया है इस बार, तो नेट गया है भाई.
आई वॉन्टेड टू गेट दिस वीडियो आउट, इसलिए मैंने सोचा भाई स्ट्रीम पे ही ये सारी बातें करते हैं और मैं रिकॉर्ड कर लूँगा साइड बाय साइड OBS में. तो या विल कंटिन्यू एनीवेज, ये अपलोड होगा एंड देन बाद में लोग देख सकते हैं, तब तक नेट भी आ जाएगा. For 6 years after they wrote the manual, Jimmy Cauty and Bill Drummond pulled all their music from sale. They went to their bank Yeah. and they withdrew most of the money that they had left over from sales and royalties, both from the novelty #1 single and नंबर 1 सिंगल से, जो उनका हिट था, जिसके लिए उनको जो वो जाने जाते थे, वो सारे पैसे उनने निकाल दिए और ब्रो सारा कैश जला दिया ब्रो एक फैक्ट्री में पकड़ के. पता नहीं मिलियन या कितना था उस पे, आई डोंट नो, बट from all the other hits they'd had since then. They had £1 million in cash. They travelled to this island, Jura, in Scotland. They went to an abandoned boathouse a couple of miles down the coast and they burned all of that £1 million. ब्रो इमेजिन, शाउट आउट टू दिस क्रिएटर, ये उसी जगह पे आया एंड वहीं पे बैठ के वीडियो बनाया. Cash as art. Now, I'm not about to do anything like that. I wouldn't recommend doing anything like that. I don't think they would these days either, but I am well aware that nothing lasts forever. If all you're trying to do is repeat your one success, or if all you're doing is trying the same thing over and over and over and over and over again for years and you're getting nothing back, Yeah, then you might as well just be throwing your money in a fire. yeah. So these days, I hope that my ideas work. I try to accept when they don't, and I Try to accept when they don't is the biggest maturity one can have. If things are not going good for you, just change certain things. try out new things. And sure, my baseline is different when I was starting out, the same way it's different to that of a massive corporation who might. ये टॉम स्कॉट की वीडियो थी एंड द फुल लिंक ऑफ द वीडियो इज इन द डिस्क्रिप्शन. जिसको देखना है, जिसको भी देखना हो, बीच बीच में मोटिवेशन की ज़रूरत पड़े तब देखना हो, तो ये लिंक मैं डाल रहा हूँ. और ऐसे आर्टिस्ट रिलेटेड या इन जनरल फिलॉसफी वाले वीडियोस पे मैं और वीडियोस बनाऊँगा. तो या सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल. And thank you so much for watching.